Okay, so until the last lecture, we had seen the 900 restriction enzyme from over 230 strains of bacteria isolated. So now we are on nomenclature of enzyme. What is nomenclature of enzyme? We have this term, nomenclature, binomial nomenclature before too. We have used them before. So here we are for the enzymes eco-R1, Hen2, the examples that I gave you. Now eco-R1, the first one is genus, this is Escherichia. Second is coli, that is second and third combined, that is a species. The third R is strain, but it's not R strain, S strain, that is virulent, non-virulent, no. It is RY13, okay? And the last one, Roman number, I explained you that before too, when I was telling you Hen2 was the first discovered enzyme. So at that time we see that eco RY13 was isolated in the order 1. So that is only the order of isolation, and it is always in the Roman numbers. Now we are on nucleases. So I told you that endonucleases and exonucleases are the two type of nucleases. Endo means inside, that is makes cuts at specific position within DNA, and exonucleases, as I told you, outside, that is removing nucleotides from the ends of the DNA, not within the DNA. Okay, now next we are having this point, 2 points that are going to be worth $1 million. That is, each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence. Now if you practice books like biology at fingertips, even if you don't, you should. So you will see this question a number of times in that, inspecting the length. So this is very important. You can see inspecting underlined and emphasized. Now there is one more question. Okay, when you read molecular basis of inheritance, you must have seen the double helical structure of DNA. आपने देखा होगा कि उसकी एनालॉगी स्टेयर केस से होती है. तो स्टेयर केस में क्या होता है, बीच में स्टेयर्स होती हैं और साइड में रेलिंग्स होती हैं. DNA is in the same way. The staircase is the base pair, that is GC, triple bonded, AT, double bonded, and what are the railings? The railings are sugar phosphate backbones. So in this case we are telling कि sugar phosphate backbones जो होती हैं, that is the railing, उस पे कट होता है. लाइक एंडोन्यूक्लियस कट तो करता है और हम बार बार बेस पेयर का नाम ले रहे हैं, बट एग्जैक्टली बेसिस पे नहीं कट होता है, बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पर कट होता है. I'll read out the line. It cuts at sugar phosphate backbones in each of the two strands of the double helix. एक और कीवर्ड आता है in each of the two strands. दोनों के दोनों strands के sugar phosphate backbone पे कट लगता है. अगर each of the one strand आ गया, in any one of the strand आ गया, that statement will be false. This diagram is from NCERT. You should be very focused at the diagrams in the NCERT because they are exactly copied from the NCERT in the notes. That's because सारे diagram exactly आ जाते हैं and we don't want you to have any confusion over them. So this diagram represents action of restriction enzyme. So now this is very important and very conceptual part. I think you should completely focus on this topic now. This is me explaining कि कैसे कट के कैसे वेक्टर के पास जाता है और कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके लिए चाहिए रहेगा. So the first thing that I'm telling you some statements and then I'll explain them. So my first statement is always one same restriction enzyme is used to cut the foreign DNA and the vector DNA. अब ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरिटी को रिटेन करना है. नाउ ये सारे शब्द तो भारी हो गए, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपल फॉर्म. ओके, मैं मानती हूँ कि आई गॉट अ स्ट्रिंग. ठीक है, बहुत लंबी सी स्ट्रिंग थी, and you know what, I like that string,
and I took a part of it. Okay, I took 1 centimeter of it, but now I don't want my mother to know that I did something with the string, and I have this spare string, है ना, फालतू सी कोई string पड़ी है मेरे पास, तो मेरे पास उसका भी कुछ है, because I remember my mother just got 1 meter of the string and she will notice if she knows that I took it. मैं क्या करूँगी, मैं उस स्पेयर स्ट्रिंग का 1 सेंटीमीटर तोड़ के वहीं लगा दूँगी ताकि किसी को पता ही ना पड़े. दिस इज़ द सेम थिंग वी आर डूइंग विद द प्लाज्मिड. एक प्लाज्मिड होता है जो कि वेक्टर है, उसमें मैं एक 1 सेंटीमीटर का, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, जीन हटा दूँगी और वैसा ही जीन, उतनी ही लेंथ का जीन मैं फिट कर दूँगी फॉरेन डीएनए से, और मैं उस प्लाज्मिड को डाल दूँगी होस्ट में. तो उससे क्या होगा, होस्ट को पता ही नहीं पड़ेगा. जस्ट लाइक आई डिड विद माई मदर, उनको पता ही नहीं पड़ा स्ट्रिंग में कुछ हुआ, सेम वे होस्ट को पता ही नहीं पड़ेगा. तो लिटरल मीनिंग क्या हुआ, ये तो एग्जाम्पल हो गया. लिटरल मीनिंग ये हुआ कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं. जी के सामने सी ही होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड से, ए के सामने टी ही होना चाहिए डबल बॉन्ड से. और इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उन दोनों को कट करने के बावजूद भी वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी रहे. अब अगर मैंने सेम एंजाइम से काटा, लाइक यहाँ पे है EcoR1 जो कि कट करता है GAATTC में G और A के बीच में. तो मैंने क्या किया, दोनों को EcoR1 EcoR1 जो है वो दे दिया. ठीक है, दोनों कट हो गए. तो देखो इसमें ध्यान से, ऊपर वाले में चाहिए कट क्या हो गया, नीचे वाले में चाहिए कट हो गया. ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में इसे कहूँगी, एक का राइट है एक का लेफ्ट है, एक का ऊपर एक का नीचे है. असली भाषा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम कट हो गए. अब देखो, अगर मैं इससे ओवरलैप कर दूँ, येलो एरो देखो, तो क्या होगा, वापस कॉम्प्लीमेंट्रिटी रिगेन हो जाएगी. ए के सामने टी हो जाएगा, जी के सामने सी हो जाएगा. दैट मीन्स कि वो वापस बाइंड कर गया, और वो बाइंडेड डीएनए जो कि आधा फॉरेन डीएनए था आधा वेक्टर डीएनए था, वो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, रिकम्बाइंड डीएनए बन चुका है. ठीक है, मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ. The enzyme cuts both DNA strands at the same site. EcoR1 cuts the DNA between bases G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA. वेक्टर डीएनए में आप देख सकते हैं GA के बीच में से कट हुआ, फॉरेन डीएनए में भी कट हुआ, उसके बाद स्टिकी एंड्स होगा, इन्हें कहते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, और ये फैसिलिटेट करते हैं डीएनए लाइगेज के एक्शन को. इन लाइनों को मैं बाद में बताती हूँ. डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइन एट स्टिकी एंड्स. ठीक है, ये देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. एग्जैक्टली ऐसा बन गया कि किसी को पता ही ना पड़े, मतलब प्लाज्मिड को पता ही ना पड़े, होस्ट उसे ले ले अपना समझ के, और रिजेक्शन का खतरा प्लाज्मिड के ना रहे. Restriction enzyme cut the strand of a DNA a little away from the center of palindromic site but between the same two bases on the opposite strand. यहाँ पे keywords क्या है, same two bases, मतलब यहाँ पे भी G और A के बीच में काटा, वहाँ पे भी G और A के बीच में काटा. एंड ऑपोजिट स्ट्रैंड इंपॉर्टेंट है. ऑपोजिट मतलब एक में 5 प्राइम टू 3 प्राइम कटेगा, तो दूसरे में 3 प्राइम टू 5 प्राइम कटेगा. क्यों? ऑल द रीजंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस राइट नाउ इज टू रिटेन द कॉम्प्लीमेंटरिटी. लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड. अब दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड रह गए. ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस रह गए हैं कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट्स, मतलब वही जी सी के साथ ए टी के साथ. स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स एंजाइम डीएनए लाइगेज. ठीक है, फैसिलिटेट्स द एक्शन करके पूरी लाइन है. ठीक है, फिर डीएनए लाइगेज एज सेड मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, वापस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा. Same restriction enzyme is used for foreign DNA and vector DNA, otherwise recombinant vector cannot be created. तो पूरा डायग्राम मैंने समझाया इसलिए था कि सेम एंजाइम यूज़ होना चाहिए. सेम एंजाइम यूज़ नहीं होगा, सेम बेस पेयर पे कट नहीं होगा, सेम बेस पेयर का कट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं रहेगी. कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं रहेगी तो बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कभी बन ही नहीं पाएगा. उसके बाद देखो,
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना एक्सप्लेन किया है कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही क्यों है, अंडरलाइन भी है तो देख लो। उसके बाद क्या है, फॉरेन डीएनए है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है। वैसे फॉरेन डीएनए है, वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए यूजुअली प्लाज्मिड होता है, मैंने बताया था प्लाज्मिड के एग्जांपल्स, है ना, मतलब वेक्टर के एग्जांपल्स प्लाज्मिड, बीएसी, वाईसी। अब क्या किया मैंने, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू पास किया, दोनों में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन कट जाएगा। उसके बाद जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हट गए, क्योंकि उसका तो काम मॉलिक्यूलर सीजर का होता है, अब मुझे लाइकेज यूज़ करना पड़ेगा, मतलब मॉलिक्यूलर ग्लू यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो इस ब्लू ब्लू पार्ट को, दैट इज़ फॉरेन डीएनए के जो जीन को मैंने डिज़ायर्ड जीन को चूज़ किया है, उसे फिट कर देगी उतनी ही लेंथ में, और उसके बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर मैं ये प्लाज्मिड दे दूँ उसको, मेन होस्ट को, जिसमें मैं चाहती हूँ कि, जैसे मैंने बताया था, इकोलाई इंसुलिन बनाए, तो मैं चाहती हूँ कि वो इंसुलिन बनाए, तो वो मैंने उसे जीन दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जीन मैंने उसे दिया है डालकर इकोलाई को, ताकि वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करे। तो अब मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि मैंने दे दिया, वहाँ पे जॉब ख़त्म नहीं होती है। व्हाट आई हैव टू इंश्योर इज़ कि ये प्रोजेनी को कंटिन्यू रहे, मेंटेन रहे, पहले तो उसमें खुद में मेंटेन रहे और वो प्रोजेनी में भी ट्रांसमिट होता जाए। तो जब कोई चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, द प्लाज्मिड इज़ टेकन, तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो बाद में जब हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे तब हमें कुछ टर्म्स के साथ डील करना पड़ेगा, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड के रिजल्ट को शो कर रहा है, वो आगे की बातें हैं, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, पर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आया है, आई हैव टू एक्सप्लेन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसने प्लाज्मिड को एक्सेप्ट किया है, रिकॉम्बिनेंट जिसने प्लाज्मिड को एक्सेप्ट तो किया ही है, उसे उसका इफ़ेक्ट भी शो किया है, उसका प्रोडक्ट भी शो किया है।